Hello everyone, welcome back to my channel, and this is my very first session after my introductory session. And here, what is my first session about? It is the Geography's Class 7 history. Geography. We are discussing Geography of Class 7's ICSE board, and this is presented by me, Simran Priya. Let's move forward. What is our today's discussion on? We will be discussing class chapter 10 Europe. And this is from the book Middle School Geography, Frank EMU Books. So this is the 10th chapter of this book, that is Europe. And this chapter, I have divided this particular chapter in several parts. So this is the very first part of this particular chapter. Okay, this is part A of this particular chapter. Moving on, what will we be discussing on? We will discuss today the introduction of Europe, as what Europe lies where, and Europe is among at what number it comes in among all the 7 continents, and then we will be discussing the land and the location of Europe, and plus the political division of Europe. Okay. Moving on, so before starting my session, let me introduce myself first. So my name is Simran Priya. I have done my graduation and my master's from Delhi University, and I am presently teaching at a school that is named as Common School, and I am also a social educator. And as you know, in my introductory class itself, that this is an extension of my NGO work, and this is my online virtual, that is a virtual venture. So let's hop and let's start with our session. I am very excited, so I guess you are too. Now let's start with our session. That is the very first, that is the 10th chapter, Europe. Now, Europe is the western portion of the Asiatic landmass, and it is the world's 6th largest and the 2nd smallest continent. अब आप लोगों को पता है how many continents do we have? We have 7 continents, and this is Europe is the 2nd smallest continent. ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है और ये दूसरा smallest continent है. अगर ये 7वें में दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इसका मतलब इट इज द वर्ल्ड्स 6th नंबर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. 6ठे नंबर पे ये आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग द 7. Okay, now moving on, this I hope you have understood. Now, Europe left a long and lasting effect. Now, Europe's history is very well known, and it has left a very deep-rooted effect on the world. Now, we all know of Industrial Revolution, Renaissance, Reformation. All these revolutionary ideas have came in Europe first, and then it enlightened whole of the world. So the railways that came through the Industrial Revolution, that was the gift of Europe. Okay, so that's why we say Europe has left a long and a lasting effect on the political, culture, social, economic history of the world. Okay, so Europe has left what? It has left this mark, ना केवल पॉलिटी में बल्कि culture, society, society. Yes, am I audible to everyone? Am I visible to everyone? Is there any problem? Please let me know that am I audible and visible to everyone? Okay. Thank you so much. Thank you so much, Neetu Jajodia. Thank you so much, Preeti Ranjan, Vinod Kumar, Alisha Avinotri. Thank you so much, Bachas. Thank you for letting me know. So I am audible and I am happy to be with you people. Now, हम लोगों को क्या होता है? यूरोप एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ देता है हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, क्योंकि इसका पॉलिटी,
इसका कल्चर, इसका सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है और इसने बहुत चेंजेस लाए हैं वर्ल्ड में, ठीक है। It was very powerful during the 17th and the 18th century as it controlled most of the world. अब हम लोग जानते हैं यूरोप से ही ब्रिटेन भी यूरोप में ही है, and we know India was itself क्या था इंडिया में क्या था, इंडिया किसका गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था। So we itself was a colony of Europe. So हमें पता है कि यूरोप ने almost most of the world को अपनी कंट्रोल में रखा है during the 17th and the 18th century. Okay, now what is the meaning of socio-economic? That means the social history. It has an impact on social history also, and it has an impact on the economical history also. Okay, that's the meaning of socio-economic. Moving on. Now, if you see at the map, this beautiful map of the world, if you see, now here we have all the 7 continents. Here we have all the 7 continents. So, यूरोप जो है वो 6th नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, समझ गए। और ये ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज नोन एज ओशियाना, नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के बाद दिस इज फर्स्ट नंबर, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद कौन आता है, यूरोप आता है। ओके, वी हैव अंडरस्टूड दिस। Now, moving forward, now we will do land and location. What is the land and what do we know about the land and location of Europe? Now, moving on, Europe lies in the temperate zone. Now, आप लोगों को पता है कि यूरोप टेम्परेट जोन में लाई करता है। टेम्परेट जोन क्या है? अब हमारी अर्थ में, दिस इज आवर अर्थ, हमारी अर्थ में क्लाइमेट के बेस पे किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है उसके आधार पे 3 जोन्स बनाए गए हैं। कितने जोन्स बनाए गए हैं? 3 क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेटर, जो ये बीच से ये जो लाल लाइन जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, व्हाट इज दिस? This is equator, and where the equator passes, what happens, वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वेटर पास हो रहा है, इसके ऊपर 30 डिग्री तक और इसके नीचे 30 डिग्री तक, यहाँ का रीजन इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन और द टॉरिड जोन। यहाँ का रीजन, ये लाल वाला रीजन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज टॉरिड जोन और द ट्रॉपिकल जोन। ओके, नाउ above the torrid zone is the temperate zone. This red वाला part is the temperate zone, and नीचे में भी the red वाला part is the temperate zone. Understood? और उसके ऊपर आर्टिक सर्कल वाला पार्ट जो एकदम ठंडा है वो is the frigid zone. ठीक है। अब आप अगर इस वाले मैप में देखो, आप देखोगे कि हमारा यूरोप ये है, हमारा यूरोप कहाँ है, यहाँ है हमारा यूरोप, और ये आप देखो कि ये इस लाइन के ऊपर है ना। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हमारा टॉरिड जोन था, तो ये कहाँ पर आ गया, ये हमारा टेम्परेट जोन में पड़ता है। So Europe lies in the temperate zone, and it lies between what? Latitude 35 degree north latitude to 72 degree north latitude. ये कितनी लैटिट्यूड? लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन, ओके। तो लेटी हुई लाइन हमारी कहाँ है, ये है 30 डिग्री यहाँ पर है, उसके ऊपर यहाँ पर 35 डिग्री है, तो आप देखो यहाँ से यूरोप शुरू हो रहा है, ठीक है। 35 डिग्री से ये कितनी दूर तक जाता है, 72 डिग्री तक। आप देखो यहाँ तक यूरोप जा रहा है, राइट। 60 डिग्री है, उसके ऊपर जा रहा है। सो 35 से लेकर 72 डिग्री लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। और अगर लंबाई में देखें, लॉन्गिट्यूड, इफ वी विल सी द लॉन्गिट्यूड, ये लंबी लंबी लाइन अगर हम देखें तो इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 25 डिग्री वेस्ट टू 65 डिग्री ईस्ट। Understood? Between this area. So 25 degree west
to 65 degree east. Yes, very good, Khushbu Poddar. Torrid zone has a hot climate, temperate zone has a moderate climate, and fissile zone has a cold climate. And yes, that's the point. That's the whole point. इक्वेटर के पास वाला जो जगह होता है वो तो बहुत उसमें गर्मी होती है. अब आप अगर इंडिया को देखोगे, अपने इंडिया को ही देखो, तो ये भी हमारा टॉरिड जोन में ही आ रहा है, लेकिन इसीलिए साउथ वाले पार्ट में इंडिया की बहुत गर्मी होती है ना. लेकिन इंडिया का ऊपर वाला पार्ट किस में आ जाता है, टेम्परेट जोन में आ जाता है, इसलिए वहां पर नॉर्थ इंडिया में हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है. Understood? Thank you, Khushbu Poddar, for letting us know. And yes, you are absolutely correct. Okay, moving on, the eastern boundaries of Europe. Now, यूरोप हमारा ये जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ये जो यहां से लेकर यहां तक है, दिस इज यूरोप. ओके, यूरोप. सो इसका जो ईस्टर्न बाउंड्री है, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर दिक्कत है तो लेट मी वंस अगेन डू दिस. अगर हम ये ऐसा डायरेक्शन बनाए एंड वी नो कि ऊपर में जो चीज है वो नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट है एंड हमारे राइट हैंड साइड पे ईस्ट है. Now I remember this through a small hint, एक small logic लगा के मैं याद रखती हूँ कि we write we are Indians. हम लोग क्या लिखते हैं, we मतलब हम. So हम लोग हमेशा WE लिखते हैं, that is meaningful. कभी भी EW will not be meaningful. Okay? So इसलिए हम लोग इस जब भी डायरेक्शन पता करेंगे तो हम लोग उसमें चुपचाप से क्या लिख देंगे, WE. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, बगल में जल्दी से ये प्लस बनाओ और यहाँ पे WE लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा. अगर मैम बोल रही है ईस्टर्न बाउंड्री, तो इसका मतलब मैम इस तरफ की बात कर रही है. Okay? Because this is the eastern half of Europe. Okay, now moving on, the eastern half of Europe, which is separated from Asia. Now आप लोगों को पता है यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है. ठीक है. अब ये हालांकि अगर आप फिजिकली देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा देखिए मिला ही हुआ है ना. तो ये फिजिकली कोई सेपरेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि यूरोप की हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी पॉलिटी अलग है, एशिया का कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी अलग है, दैट्स व्हाई दे आर टू सेपरेट कॉन्टिनेंट्स. अंडरस्टूड? So, what is the eastern boundary? अगर यूरोप की हम बाउंड्री बताएं कि कहां पर तक यूरोप फैला हुआ है, तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं ये यूरल माउंटेन, ये खूबसूरत यूरल माउंटेन पहला बाउंड्री बनाता है. द कैस्पियन सी, दैट इज दिस फॉर्म्स द सेकेंड बाउंड्री, और यहाँ पर से ये एक सी निकलती है, दैट इज द रिवर यूरल. This river Ural forms the third boundary. Okay, now this is the three boundary. I am sorry if my voice is echoing. Am I not clear? Should I? Because अभी मैं कोई भी technical changes नहीं कर सकती हूँ, but I will make sure कि next class से मैं और voice का echoing रोक पाऊँ. Okay, thank you so much for letting me know. Okay, now आप लोग समझ गए होंगे कि ईस्टर्न बाउंड्री क्या है. बहुत सिंपल है ईस्टर्न बाउंड्री. यूरल माउंटेन है, रिवर यूरल है, कैस्पियन सी है. अंडरस्टूड? नाउ मूविंग ऑन. Now, I have said you कि there is no physical separation. यहाँ पर कोई भी physical separation नहीं है एशिया और यूरोप में. अगर आप मैप में देखो तो देखो ये एकदम प्लेन जा रहा है ना, सिर्फ बीच में माउंटेन आए, कोई भी ऐसा कट नहीं है. ओके, so there is no physical separation. कोई भी ऐसा ऐसा करके बीच में कट करके वहां से पानी नहीं बहने लगा है, वैसा separation नहीं है. ठीक है. So there is no physical separation. So the division between Europe and Asia is the historical and cultural construct. तब आप लोग पूछ सकते हो कि मैम अगर यूरोप और एशिया के बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है तो इन लोगों को अलग अलग किसने बनाया.
Now they are divided, वो लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं because of the history, क्योंकि वो लोग का हिस्ट्री इतिहास अलग है, because of the culture, because they belong to different culture, दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट है, इसलिए वो डिवीजन है. ओके, नाउ यूरोप इज अटैच्ड टू एशिया, तो वो पार्ट जहां पर यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है, जो यूरल माउंटेन के आसपास का एरिया, ये वाला एरिया जहां यूरोप किससे जुड़ा हुआ है, यूरोप एशिया से जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं यूरेशिया. यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया. यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया. एकदम बहुत इजी है. आप देखो EUR, EUR कहां से आ रहा है, यहां से EUR, और एशिया उसके बाद लिख लेना है. तो यूरोप प्लस एशिया इज यूरेशिया. जहां पर ये दोनों मिलता है वो यूरेशिया बनाता है. Moving on, as you can see in this map as well, this is Europe. ओके, और ये हमारा कौन सा सी था, ये हमारा था मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी. ठीक है, हमारा माउंटेन कहां पर है, हमारा माउंटेन यहां पर है. हमारा यूरल रिवर कहां पर है, हमारा यूरल रिवर यहां पर है. ओके, सो इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं. जहां पर ये जाकर यूरोप एशिया से मिल जाता है उसे यूरेशिया कहते हैं. Understood everyone? Okay. Now, Europe is surrounded by water on three sides. It is very simple. यूरोप क्या है, तीन साइड पर वाटर से घिरा हुआ है. पहला आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी इन द साउथ. Now you want to see this in the map, of course. Now you can see ये हमारा यूरोप था. Now मैं मैप में दिखाती हूँ, ये आपको यूरोप है हमारा, मैप है ये. हमारे ऊपर में क्या है, हमारे नॉर्थ में हमारे पास कौन सा सी है, हमारे पास आर्टिक सी है. ओके, हमारे वेस्ट में हमारे पास कौन सा सी है, हमारे पास अटलांटिक सी है. एंड हमारे साउथ में वी हैव टू सीज, दैट वन इज मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी. ओके, अब देयर इज अ टर्म नोन एज प्लेटो. प्लेटो क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू वो होता है जो एक लैंड जो ज्यादातर कोनों से पानी से घिरा हो. नॉट ऑल द साइड. अगर समझ लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, और ये इस साइड में इसके पानी है, इस साइड में इसके पानी है. नाउ ये एक लैंड है, इसके इस साइड में पानी है, आई एम सॉरी, ये एक लैंड है, इसके इस साइड में पानी है, इसके इस साइड में पानी है, इसके इस साइड में पानी है. तो ये एक क्या बन गया, ये एक प्लेट्यू बन गया. ओके, लेकिन अगर इसके इस साइड में भी पानी हो जाता और इसके चार साइड में पानी हो जाता तो ये क्या बन जाता, ये इसके तरह एक आइलैंड बन जाता. किसके तरह, इसके तरह, ये जैसे एक अकेला आइलैंड बैठा हुआ है ना. सो क्योंकि यूरोप के तीन हिस्सों में पानी है, इसलिए यूरोप जो है वो एक प्लेट्यू है. यूरोप इज व्हाट, यूरोप इज अ प्लेट्यू. ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, पेनिनसुला. I was telling you plateau. I am really sorry. Plateau नहीं होगा बच्चा, पेनिनसुला होगा. I am really sorry about this. So यूरोप क्या है, एक पेनिनसुला है. अगर एक लैंड जिसके ज्यादातर हिस्सों में if a land has water on maximum side of it, ज्यादातर maximum side of it, so उसे हम लोग क्या बोलेंगे, it will be called as peninsula. I'm really sorry, I was telling you plateau. I'm really sorry for that. Now Europe also made up of few more peninsulas. यूरोप खुद में एक पेनिनसुला है क्योंकि वो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है. नाउ यूरोप और भी पेनिनसुला से बना हुआ है. ओके, जो इसके कोस्ट लाइन में रहते हैं. जैसे कि कोस्ट लाइन मतलब क्या होता है, कोस्ट लाइन मतलब होता है किनारा. ये सारा किनारा है, ठीक है. तो ये यूरोप का क्या है, ये यूरोप का कोस्ट लाइन है. जो पानी के किनारे वाला हिस्सा है वो उसका कोस्ट लाइन होता है. सो यूरोप खुद में एक पेनिनसुला है और वो बहुत सारे पेनिनसुला से बना हुआ है.
ओके, कैसे बना हुआ है? नाउ फर्स्ट इट इज मेड अप ऑफ स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या है? दिस इज स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ऊपर वाला पार्ट, नॉर्वे स्वीडन वाला पार्ट इज द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. Second is the Iberian Peninsula. This part, the Spain wala part is the Iberian Peninsula. Then we have Peninsula of Italy. Italy कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर है हमारा इटली. This is Italy, right? So आप देखिए यहाँ पर भी तीन साइड से पानी है, तो ये भी एक पेनिनसुला बन गया. इटली का पेनिनसुला is this. Then we have Greece. Greece का पेनिनसुला is this. Okay. Moving on, Scandinavian Peninsula, Iberian Peninsula, Peninsula of Italy and Greece. Okay, that's why Europe is known as Peninsula of Peninsulas. What is Europe known as? Europe is known as Peninsula of Peninsula. Understood, everyone? Moving forward, the political division. What is the political division of Europe? Now, Europe is a very small continent. हम लोग जानते हैं सब पूरे वर्ल्ड में यूरोप कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है? सेकंड स्मॉलेस्ट है. You remember, second smallest continent है. So Europe is a very small continent, लेकिन इसके पास 50 sovereign state है. That means independent states. इसके पास क्या है? 50 independent states है. Okay. Now Europe has world's smallest country. Europe के ही पास वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री, that is the Vatican City. Vatican City is where? रोम में है Vatican City. इटली का कैपिटल रोम, रोम में है Vatican City. So हमारा सबसे छोटा कंट्री कौन है? Vatican City. और हमारा सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है? रशिया. और ये दोनों चीज यूरोप में है. So the smallest country, that is the Vatican City, and the largest country, that is Russia, both lies where? Both lies in the continent Europe. Okay, now we have tiny for पांच. हमारे पास 5 स्मॉल नेशंस हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो यूरोप में मिलती हैं. जैसे कि पहला इज सैन मैरिनो. सैन मैरिनो कहां पर है? इटली में है. अभी आप लोगों को इटली मैंने दिखाया ना. लेट अस सी वंस अगेन वेयर इटली इज. दिस इज इटली. ओके, दिस इज इटली. ये वाला पार्ट इटली है. ओके, okay. Okay, I cannot find my eraser. Yes, I can find it now. Now, let me show you where Italy is. Let me erase once this and let me show you कहाँ पर इटली है. ठीक है, सब कुछ मैंने मिटा दिया. वेरी गुड. ना देखिए, ये है हमारा इटली. ठीक है, ये हमारा क्या है? इटली है. और ये हमारा एक पेनिनसुला है फर्स्ट ऑफ ऑल. और यहाँ पर हमें एक बहुत छोटा सा प्यारा सा कंट्री मिलता है, दैट इज सैन मेरिनो. Okay, now second is Monaco, that is in the southern coast of France. हमें फ्रांस के southern coast में क्या मिलता है? Monaco. Okay, second, बहुत easy नाम, Monaco. Now third is Andorra. Andorra कहाँ हमें मिलता है? Pyrenees में मिलता है. Now what is Pyrenees? Pyrenees first of all is a mountain. Pyrenees is a mountain, and this mountain lies where? This mountain lies where? It lies between Spain. Yes, tell me, where does it lies? आप लोग बताओ कहाँ पर रहते हैं? ये वाला माउंटेन कहाँ पर है? हम लोग जानते हैं ये कहाँ पर है. सबसे नीचे टिप पे, दैट इज स्पेन और फ्रांस के बीच में हमें ये माउंटेन मिलता है. किसके बीच में ये माउंटेन मिलता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में बच्चा. नाउ लेट अस सी स्पेन एंड फ्रांस. नाउ वी नो इस पार्ट में हमारा क्या है? स्पेन है. इस पार्ट में हमारा क्या है? फ्रांस है. ये जो डिवीजन है, यहाँ पर हमें ये माउंटेन मिलता है, दैट इज नोन एज Pyrenees. Okay, and so here we find this tiny city Andorra.
ओके, यहीं पर हमें ये छोटी सी शहर मिलती है एंड्रोरा, और ये भी पार्ट किसका है, आइबेरियन पेनिनसुला का। स्पेन के साथ जो मिलकर आइबेरियन पेनिनसुला बन रहा है ना, वो उसका पार्ट है। अभी हम लोग उसको करेंगे, सो आप कंफ्यूज मत होना, अभी ये बस 5 नाम याद रखो। नाउ फोर्थ इज लिंचटेनस्टीन। लिंचटेनस्टीन, आप इसे अलग अलग करके याद करना। लिंचटेन Liechtenstein in the Central Europe, okay? And fifth is the Vatican City in Rome. और Vatican City के बारे में तो हमें पता ही है। Moving on, the Western European countries include. Now, अब यूरोप में हम लोग उसको डिवाइड कर करके कंट्रीज के बारे में पता करेंगे। नाउ सबसे ऊपर में हमें क्या मिलता है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हमारी कौन कौन सी है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है हमारी फ्रांस, we have United Kingdom, that is this pink वाला part is United Kingdom, and Ireland. So ये हमारे किस साइड पे आया, वेस्टर्न साइड पे आया, इसलिए ये हमारा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बनाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर आप लोग इस मैप में देखो, हमारे वेस्ट साइड पे कौन सा कंट्रीज लटका हुआ है, ये तो हमारे साउथ में आ जाएगा, राइट? सो हमारे वेस्ट साइड पे कौन सा कंट्रीज निकल के लटका हुआ है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड एंड फ्रांस। So these three are the Western European countries. Moving on, the Central European countries, very important. Central Europe हमारा कहाँ है बच्चा? Central Europe हमारा ये होगा ना, ये होगा हमारा Central Europe. सेंटर यही है ना यूरोप का। अगर आप सेंटर देखो, इसको नॉर्थ मान ले, इसको वेस्ट मान ले, इसको ईस्ट मान ले, इसको साउथ मान ले, तो यही तो मुझे बीच में दिख रहा है। सो सेंट्रल यूरोप इज दिस मैप आई हैव शोन इन अ बिगर वे। सो हमारे पास क्या क्या है, एक बड़ी सी जर्मनी वी हैव इन सेंट्रल यूरोप, वी हैव स्विट्जरलैंड, जर्मनी के नीचे वी हैव स्विट्जरलैंड, देन वी हैव ऑस्ट्रिया, देन वी हैव यहाँ पर एक चीज छूट गया हमारा, क्या छूट गया, इटली छूट गया, जो यहाँ पर है ना, जो ऐसे करके लटक के था, दैट इटली, वी हैव इटली ऑल्सो। Now we have Hungary, then we have Czech Republic, and we have Slovakia and Poland. So these all places makes the Central European countries. These places make what? These places makes the Central European countries. Okay. Moving on, the Iberian Peninsula. अभी हम लोग Iberian Peninsula कर रहे थे ना? आई एम सॉरी। सो अभी हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला कर रहे थे। सो आइबेरियन पेनिनसुला क्या है, हमारा ये वाला पार्ट इज आइबेरियन पेनिनसुला। ओके, सो इसमें क्या आता है, स्पेन तो आएगा ही, उसके बगल में इस पोर्टुगल, स्पेन के साथ बगल में क्या है, पोर्टुगल, और हम लोगों ने अभी जाना स्पेन और फ्रांस के बीच में जो माउंटेन है प्रीनीस, उसमें हमें क्या मिलता है, एंड्रोरा। So Spain, Portugal and Andorra together makes Iberian Peninsula. अगर मैं आप लोगों से पूछ दूं, अगर आपके स्कूल में आपसे पूछ दिया जाए, बच्चा Iberian Peninsula मार्क करो, तो आप लोग मार्क कर लोगे? आप लोग मार्क कर लोगे कि स्पेन तक का जगह को आप मार्क करके बोल दोगे दिस इज Iberian Peninsula. Okay, moving ahead, the Balkan states include. बाल्कन स्टेट्स में हमें क्या क्या मिलता है ना, बाल्कन स्टेट हमने क्या कर लिया, वेस्ट कर लिया, हमने ये वाला पार्ट कर लिया, कट कर दीजिए, ठीक है। हमने और क्या कर लिया, हमने ये वाला पार्ट कर दिया, कट कर लीजिए। और हमने क्या कर लिया, हमने फ्रांस भी कर लिया है क्योंकि ये इसके साथ आता है, द वेस्टर्न पार्ट। स्पेन कर लिया है, कट कर लीजिए। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है ये वाला पार्ट, वी हैवंट डन दिस पार्ट, सो it will also include Turkey. So ये वाले पार्ट में this is known as the Balkan state, जिसमें हमारे पास क्या है, we have Greece here, we have और हमारे पास इसके साथ क्या क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर we have Greece. Now let me erase and show you beautifully. Okay, now this is यहाँ पर देखिए, this green वाला part is Greece. Okay, now फिर we have Albania. Albania is where? Albania is here itself. We have Albania. Then we have Turkey. हमारे पास क्या है,
टर्की है, देन वी हैव बुल्गारिया दैट इज हियर, देन वी हैव रोमानिया, और रोमानिया इसके साथ साथ हमारे पास है यूगोस्लेवियन कंट्रीज। आपको इतना नहीं याद करना है बच्चा, इसका भी यूगोस्लेवियन कंट्रीज, यहाँ पे ये छोटी छोटी जो कंट्रीज दिख रही है ना, ये बनाती है यूगोस्लेवियन कंट्रीज। हमें इतना नहीं याद करना है, हमें बस बड़े बड़े नाम याद करने हैं, ग्रीस, टर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लेवियन कंट्रीज, बस हो गया। मूविंग ऑन, द बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? वो सारी स्टेट्स जो बाल्टिक सी के ईस्ट में है, बाल्टिक सी की ईस्ट में है। लेट्स फाइंड आउट वेयर बाल्टिक सी इज। हियर वी हैव बाल्टिक सी। बाल्टिक सी आपको दिख गया, इसके ईस्ट में बोल रहा है, इसके ईस्ट में, तो मुझे यहाँ पर तीन चीजें दिख रही है इसके ईस्ट में, तो सिंपल एज दैट। सो बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं जो बाल्टिक सी के ईस्ट में है? तीन है, मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है, ये ब्राउन, ग्रीन और पर्पल, दैट इज एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया। Okay, moving further, the Scandinavian countries. Now, I said where the Scandinavian countries were. The Scandinavian countries क्या है? हमारी ये Scandinavian countries बनाती है। ओके, सो अब इसके साथ साथ आइसलैंड भी आ जाता है और डेनमार्क भी आ जाता है, ये हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। ओके, सो इसमें क्या क्या आएगा? नॉर्वे आएगा, ऑफ कोर्स, स्वीडन आएगा, फिनलैंड आएगा, देन वी हैव डेनमार्क एंड आइसलैंड। Understood? So these are the Scandinavian countries. Understood everyone?Moving on to the low countries. Now low countries इसे लो क्यों कहा जा रहा है? क्या है ये क्या मैप में सबसे लो जगह पर है? क्या बात है? आखिर इसकी क्या खास बात है जो इसे लो कंट्रीज कहा जा रहा है? Why they are called as the low countries? Okay, so they are called as the low countries because of the low altitude. क्योंकि इसकी altitude क्या है? इसका हाइट क्या है? इस कंट्रीज का, यहाँ पर कोई भी हमें ज्यादा माउंटेन्स नहीं मिलता है, इस कंट्रीज के हाइट क्या है? बहुत ही लो है, इसलिए इसे लो कंट्रीज कहा जाता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाई लो कंट्रीज आर कॉल्ड एज लो कंट्रीज और व्हाई दे आर नेम्ड so you can say it because of the low altitude. Now low countries are also known as Benelux countries. ठीक है, अब बेनेलेक्स कंट्रीज का आपको एक ट्रिक है याद करने का। व्हाट इज द ट्रिक? नाउ BE इज फॉर बेल्जियम, BE इज फॉर बेल्जियम, NE इज फॉर नीदरलैंड एंड LUX इज फॉर लक्समबर्ग। ओके, सो दीज आर द 3 कंट्रीज जो हमें यहाँ मिलते हैं, और ये क्या बनाती है? ये देखिए, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। I cannot see Luxembourg here, so it is not given in this map, I guess, but यहीं पर हमारा Luxembourg भी मिलता है। So this forms this particular country, this particular Benelux nation है ये सारी countries मिलके बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग मिलके क्या बनाते हैं? Benelux nations. Moving forward, the British Isles. British Isles includes United Kingdom and the Irish Republic. These two together is known as British Isles. This is known as British Isles. Okay, United Nation and Irish Republic. Moving ahead, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। आपसे ऑफकोर्स ये पूछा जा सकता है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या है? नाम से ही पता है, जिसका लैंड पूरी तरीके से लॉक्ड है, लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट। ज्यादातर कंट्रीज देखिए कोस्ट पे है, नॉर्वे देखिए इधर के कोस्ट पे है, ये इधर के कोस्ट पे, यहाँ पर वाटर बॉडी है, फिनलैंड भी कोस्ट पे, एस्टोनिया भी कोस्ट पे, लाटविया भी है, ये भी कोस्ट पे, ये भी कोस्ट पे, ये भी सब कोस्ट पे। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो कोस्ट पे नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड हंगरी। So these 3 countries are not at the coast.
These three countries are not at the coast and they are surrounded by land at all the sides, that is Austria, Czech Republic and Hungary, and that's why they are called as landlocked countries. Okay, moving on, in 1990s what happened? The East and the West Germany united itself. हमारे पास जर्मनी कहाँ था? यहाँ था. Let me erase and make the board clear. Let me erase and make the board clear so that आपको एकदम साफ साफ दिखेगा हमारे पास जर्मनी कहाँ है. This is a beautiful Germany. ओके, अब ये जो जर्मनी है ये डिवाइडेड था पहले वेस्ट और ईस्ट जर्मनी में, लेकिन 1990s में, रिमेंबर दिस, 1990s में क्या हो गया? दोनों वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक साथ आ गया एंड दे फॉर्म जर्मनी, अ सिंगल नेशन. ओके, नाउ कम्स 1991 में क्या हुआ? एक साल बाद उसके क्या होता है? रशिया जो था इट कोलैप्स टू ब्रेकअप. रशिया जो सबसे बड़ा कंट्री था, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, वो टूट जाता है एंड इट मेक्स 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स और वो 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशंस बनाता है. ओके, इस 15 रिपब्लिक्स में 9 रिपब्लिक्स कहां पर होते हैं? यूरोप में होते हैं एंड बाकी के 5 रिपब्लिक्स एशिया में होते हैं. और एक तो 9 + 5 14 और एक तो रशिया है ही. ओके, सो 9 रिपब्लिक्स यूरोप में होते हैं. वो लोग कौन कौन से हैं? रशिया के बगल वाला एरिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये सारे है. बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. Okay, Ukraine, Georgia, Azerbaijan and Armenia. So these all made the 9 republics that are in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ही हमें दिखा और एक कहां पर क्या छोड़ दिया मैंने? Anyone say? एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, बेलारूस हो गया. वेरी गुड. यूक्रेन हो गया, मोल्डोवा नहीं हमें मिल रहा है. Moldova. I cannot see Moldova here. So, okay. Let me erase and find Moldova. है भी कि नहीं है? Yes, I can now locate it. Please see in your map that this is Ukraine, this is Moldova. ये white छोटा सा एकदम जगह है Moldova. So now we have the 9 nations. Now we have the 9 nations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 9 republics that are found there in Europe. Okay, and the remaining 5 are found in Asia along with Russia. Understood? Now with this we have come to an end of our session. Thank you so much for joining in. I will soon be coming up with my part B of this chapter. So stay tuned with us, stay with me for the part B of this chapter, and I will be bringing more like map marking. I will be bringing you exercises, sample question papers and all of that. So you are preparing for your upcoming exam. So I will help you to prepare for that. Thank you so much for joining in. Thank you so much for being so kind and patient that you listened to my whole session so beautifully. Thank you so much. I will be taking another session. Till then, bye-bye. Take care.